27th Feb 2021. Today we will be doing BG 33. We will start from chapter 10, text number 21. So let us invoke. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय. Hey Radha Krishna, thank you for giving us an opportunity to hear your stuti. Dear Lord, please use me as your mouthpiece. Whatever you want to convey to everyone, just convey it through me. I'm nothing. I'm just your channel. I'm just like a hollow pipe through which your energy flows. If the energy is stopped, the pipe has no existence. So I'm just that pipe. I'm nothing. Dear Lord Krishna, you have given me a chance to talk about Bhagavad Gita. I'm so grateful to you for this. Please bless me and please bless all the people who are trying to listen. May they achieve peace. May they achieve success in their life. May they be blessed with good health, prosperity, and may all the obstacles be neutralized from their path. We thank you in full faith, so be it. हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम हैं चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 21 पे. Of the Adityas, I am Vishnu. Of lights, I am the radiant sun. I am Marichi of the Maruts, and among the stars, I am the moon. तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ये अर्जुन से कि सारे जो आदित्य हैं उसमें से मैं हूँ विष्णु, जो पूरा लाइट है उसमें से मैं हूँ सूरज, और मैं मरीचि हूँ मरुत्स में से, और स्टार्स जो है उसमें से मैं हूँ चंद्रमा, मून. So there are 12 Adityas of which Krishna is the principal. 12 आदित्य होते हैं, उसमें से कृष्णा सबसे important है. And among all the luminaries twinkling in the sky, the sun is the chief. जो भी चीजें चमकती हुई आसमान में दिखता है उसमें से सूरज सबसे important है. तो वो कृष्ण वही कह रहे हैं कि सब में मैं श्रेष्ठ हूँ, सब कुछ में मैं ही श्रेष्ठ हूँ. And in the Brahma Samhita, the sun is accepted as the glowing effulgence of the Supreme Lord and is considered to be one of his eyes. सूरज को कहा जाता है दृष्टि, मतलब आंख. श्री कृष्ण का की आंख है सूरज, और जो श्री कृष्ण से जो तेज निकलता है उसको भी कंपेयर किया गया है सूरज से. मरीचि इज द कंट्रोलिंग डेटी ऑफ द हेवनली स्पेसेस. जो भी ऊपर आसमान में जो भी स्पेस है, जो जगह है, उनके जो भी डीटी है, मतलब उनके जो भी प्रभु हैं वो है मरीचि. ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं. अमंग द स्टार्स द मून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एट नाइट. जब भी आकाश आसमान में तारे चमकते हैं उनमें से सबसे ज्यादा चमकता कौन है? चंद्रमा. तो तारों में से कहा गया है, मतलब ये चमकीली चीजें जो आसमान में है उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है वो है चंद्रमा. तो कृष्णा कहते हैं मैं हूं वो चंद्रमा. हम नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं. टेक्स्ट नंबर 22 पे. Of the Vedas, I am the Samved. Of the demigods, I am Indra. Of the senses, I am the mind. And in living beings, I am living force. That is knowledge. The difference between matter and spirit is that matter has no consciousness like the living entity. Therefore, this consciousness is supreme and eternal. Consciousness cannot be produced by a combination of matter. तो प्रभु कहते हैं कि वेदास में मैं हूँ सामवेद. हमें पता है 4 टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. तो सामवेद सबसे श्रेष्ठ वेद है. तो सारे वेदास में कृष्ण कौन है? सामवेद. Of all the demigods, I am Indra. जो भी demigods हैं उनमें से सबसे इंद्र जो है वो भी मैं ही हूँ. Of the senses, I am the mind. हमारे जो सारे senses है, sense of touch, sense of
और जो भी मतलब हमारे जो 6 मतलब 5 सेंसेस हैं उसमें से माइंड सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो वो है कृष्णा। एंड इन द लिविंग बींग्स आई एम द लिविंग फोर्स, मतलब जो लिविंग फोर्स है दैट इज नॉलेज। मैं सारे जीवित प्राणियों में मैं हूँ ज्ञान, दैट इज नॉलेज। टेक्स्ट 23, of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of Wealth, Kuber. Of the Vasus, I am Fire. And of the mountains, I am Meru. मतलब इस सब में प्रभु यही बोल रहे हैं कि सब कुछ जो जो एक एक कैटेगरी की चीज है, वो कैटेगरी में जो जो सबसे श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। ठीक है, देर आर 11 रुद्रास ऑफ हुम शंकर दैट इज लॉर्ड शिव इज द प्रीडोमिनेंट। 11 रुद्रास होते हैं, उसमें से शिव जी सबसे टॉप है। He is the incarnation of the Supreme Lord in charge of the modes of ignorance in the universe. ठीक है, among the demigods कुबेर is the chief treasure। कुबेर कौन होता है? कुबेर है जो धन के प्रभु, मतलब वो he is the lord of the wealth, मतलब पैसा धन ये सब के जो डेमीगॉड है वो है कुबेर। He is the representation of the Supreme Lord, तो वो भी कृष्णा है। मेरू is the mountain famed for its rich natural resources। सबसे श्रेष्ठ पहाड़ वो है मेरू, वो भी कृष्णा है। टेक्स्ट 24, of priests or Arjun know me to be the chief बृहस्पति the lord of devotion। आपको पता है कि सारे जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब आप पुजारी बोल सकते हैं, तो बृहस्पति जो है वो सबसे हाई लेवल के हैं, तो वो भी कृष्णा है। ऑफ जनरल्स आई एम स्कंदा द लॉर्ड ऑफ वॉर। वॉर के जो लॉर्ड है वो है स्कंदा। एंड ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर आई एम द ओशन। Indra is the chief demigod of the heavenly planet and is known as the king of the heavens. The planet in which he reigns is called Indralok. Brihaspati is Indra's priest, and since Indra is the chief of all kings, Brihaspati is the chief of all priests. And as Indra is the chief of all kings, similarly Skanda, the son of Parvati and Lord Shiva, is the chief of all military commanders. And of all bodies of water, the ocean is the greatest. These representations of Krishna only give hints of his greatness. तो ये सारे जो है बेस्ट में वो कृष्णा ही है, सब कुछ कृष्णा ही है। सारे जो टॉप टॉप वाले हैं वो कृष्णा है, वैसे भी सब कृष्णा है, लेकिन जो सारे टॉप है वो भी कृष्णा है। इस तरह कृष्ण अपनी पहचान बता रहे हैं कि वो कितने महान है। अदरवाइज हम लोग तो बुद्धू है ना, हमें तो नहीं समझ में आता। कृष्णा जी सामने आके खड़े भी हो गए, हम तब भी करेंगे, अच्छा ऐसा है क्या, पता नहीं, आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड, है ना। मतलब लोगों को तो लोग कन्विंस ही नहीं होते आजकल। उनको तुम कितना भी मिरेकल सामने दिखा दो, फिर भी वो कोई ना कोई एक चीज शक लेके सामने आ जाएंगे। तो अगर कृष्णा जी सामने खड़े होकर अपना सब कुछ दिखा भी दे, तो भी हमारे जैसे बुद्धू सब इंसान अच्छा ऐसा है क्या, पता नहीं, शायद में भी करके छोड़ देंगे। तो वो इसलिए भगवत गीता से थ्रू समझा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मुझे समझो, दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड मी। मैं अलग नहीं हूँ, इन सब में सबसे सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ, सबसे सुप्रीम मैं ही हूँ। टेक्स्ट नंबर 25, of the great sages I am Bhrigu, of vibrations I am the transcendental Om, of sacrifices I am chanting of the holy names, and of immovable things I am the Himalayas. Brahma, the first living creature within the universe, created several sons for the propagation of various kinds of species. The most powerful of his son is Bhrigu. Bhrigu कौन है? ब्रह्मा जी का सबसे पावरफुल पुत्र। ठीक है, ब्रह्मा जी को कंसिडर किया जाता है फर्स्ट लिविंग क्रिएचर यूनिवर्स में, और उन्होंने बहुत सारे सन मतलब बेटे क्रिएट किए, जैसे कि प्रोपोगेशन हो, मतलब बढ़े, उनकी जाति बढ़े, प्रजाति बढ़े। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट है वो है भृगु। तो कृष्ण कहते हैं मैं हूं वो भृगु, who is also the greatest sage of all the transcendental vibrations, the ओम। भगवान कहते हैं मैं ही ओम हूं। तो the Omkara represents the Supreme.
of all the sacrifices, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the purest representation of Krishna. अच्छा, हमारे ग्रुप में एक यही लेकर एक क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल बात निकली थी। हम लोग प्रीच करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। अब अगर कोई कहे कि आप ओमकार बोलो, वैसे उस इंसान का ऐसा इंटेंशन नहीं था, उसे नहीं, वो इतना अवेयर नहीं था, बस उसने ऐसे ही बोल दिया था कि आप ओम चैंट करो। तो तब मैंने समझाया, तो मैं इसमें इस भगवत गीता सेशन में भी समझाती हूँ कि व्हाट इज ओम। ओम इज द क्रिएशन मंत्र। ओम ही कृष्णा है माना। ओम कृष्णा है क्योंकि ओम से ही सृष्टि बनी है। वैसे तो सभी कुछ कृष्णा है, लेकिन ओम है प्यूरिफिकेशन मंत्र। आप ओम चैंटिंग करोगे, आप प्यूरिफाई होगे, बट ओम को शुद्ध वे में चैंट करना पड़ता है। ओम मतलब ओम नहीं होता, आम बोल के एक पर्टिकुलर ध्वनि निकलती है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे आपको चैंट करना पड़ता है तब। और आपका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, आप क्लीन होने चाहिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तब जाके ओम का प्रभाव होता है। ये सबको नहीं पता, ये चीज सब नहीं जानते, क्योंकि भगवत गीता में ये क्लियरली नहीं बताया गया है। हाँ, लेकिन मंत्र का उच्चारण अगर ठीक से किया जाए विथ प्रॉपर इंटेंशन, विथ अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्योरिटी, तब जाके ही मंत्र का वो एक्चुअल असर मिल सकता है हमें। तो ये ऐसे बहुत मंत्रास हैं, सभी भगवान है। विष्णु जी का आप नाम लोगे, ओम नमो भगवते वासुदेव, वो भी बहुत पावरफुल मंत्र है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये कलयुग है। कलयुग में 99% हम सबकी स्थिति क्या होती है, गड़बड़। मतलब हम उतने प्यूरिफाइड नहीं होते हैं, हम लोग उतने प्योर सोल्स नहीं होते हैं। हमारे अंदर लोभ, द्वेष, घृणा, गुस्सा सब कुछ भरा हुआ होता है। तो तब हम ये मंत्र अगर जाप करें तो उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता है हमें। और ये भी कहा गया है कि कलयुग में, मतलब जब कृष्ण जी जब चले गए द्वापर युग के बाद, जब उन्होंने छोड़ दिया अर्थ, बॉडी छोड़ दी, तो सारे मंत्रास का प्रभाव कम हो गया। तो इसीलिए कलयुग में कृष्ण भगवान ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उन्होंने ये मंत्र सिखाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मतलब ये जो मंत्र है ये इतना आपको साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, पाप खत्म कर देगा, एनर्जाइज कर देगा, सब कुछ कर देगा। आपके मेटेरियलिस्टिक जो कवरिंग्स बने हुए हैं, जो लेयर्स ऑफ मटेरियल एनर्जी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो सब भी साफ कर देगा। प्रभुपाद जी ने कहा है, इवन अ डॉग कैन चैंट दिस मंत्र। मतलब नो प्रीवियस क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब ये जो मैं ओम मंत्र के लिए कह रही थी ना कि आपको साफ एनवायरनमेंट चाहिए, ये चाहिए, ऑल दैट, ये सारा कुछ आपको हरे कृष्णा चैंटिंग के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र को ही प्रमोट करते हैं। तो जब हमारे ग्रुप में इस टाइप का किसी ने लिखा तो तब मैंने उसको मना किया कि इनकम्प्लीट नॉलेज मत शेयर करो। आपको समझना होगा, अगर ओम ओम इस क्रिएशन मंत्र, कृष्ण भगवान डेफिनेटली बोल रहे हैं कि मैं ही ओम हूँ, तो फिर कृष्ण भगवान हरे कृष्णा चैंटिंग भी क्यों बोल रहे हैं? उनको कंफ्यूज करने को बहुत अच्छा लगता है कि हम तो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड आत्माएं हैं, हमारी औकात ही क्या है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ओम सतयुग में बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि द एनवायरनमेंट वाज प्योर, इट वाज क्लीन। अभी कलयुग है, हम अभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हम अभी हमारे आसपास के वाइब्रेशंस कैसे हैं? मैक्सिमम नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है ना? तो नेगेटिव वाइब्रेशंस में मंत्र चैंटिंग का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जो पावर है वो आपके नेगेटिव एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव बना देगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर उसके लिए ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपको पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है उसका अलग एंटीबायोटिक है, आपको गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसका अलग एंटीबायोटिक है। उसी तरह हर युग में अलग चीज काम करती है। दिस इज अ नॉलेज जो सबको नहीं है। सो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सीखो और सीखो, प्रवचन देने से पहले और सीखो,
कंप्लीट नॉलेज पहले गेन करो, उसके बाद प्रवचन दो आप। सो आई होप कि आप लोग ये क्लियर हो गए। वैसे उस इंसान को मैंने समझा दिया था, उसके बाद उसकी मर्जी। So Hare Krishna is the purest representation of Krishna. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Krishna, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. Whatever is sublime in the world is a representation of Krishna. Therefore, the Himalayas, the great mountains in the world, also represent him. Acha, animal sacrifice is not recommended now. ठीक है, पहले के वेदा मतलब वेदास में एनिमल सैक्रिफाइस लिखा गया था, वो किसके लिए लिखा गया था? वो पुराने एनिमल्स मतलब जो बूढ़े हो गए हैं एनिमल्स को, उनको यज्ञ में सैक्रिफाइस करके नया रिजुविनेट कर दिया जाता था एनिमल को। क्या हम लोगों में ये औकात है? नहीं है। ये ऋषि साधु संत करते थे। एनिमल सैक्रिफाइस मतलब ये नहीं कि उनको रोस्ट करके खा जाओ, हाँ, हवन में रोस्ट किया जाता था उनको, हाँ, हमारे बारबेक्यू पे नहीं। ध्यान रखो, अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं करना है नॉलेज को। ओके, सो वो हवन में डालकर उसमें से मतलब ओल्ड एनिमल को रिजुवेनेट करके न्यू बनाते थे। ये हम सब नहीं कर सकते हैं, सो फॉरगेट अबाउट एनिमल सैक्रिफाइस, उसके बारे में कंप्लीटली भूल जाओ। हरे कृष्णा चैंटिंग एक सैक्रिफाइस भी है। यहाँ पे भगवत गीता में ही कहा जा रहा है कि दिस इज द रिकमेंडेड सैक्रिफाइस। तो कलयुग में कोई दूसरा सर्कस मत करो, बिकॉज वेदास में लिखा है अगेन, टाइम टाइम पे अलग अलग चीज होती है, ठीक। सो टाइम टाइम पे अलग चीजें होती है। कोई भी मंत्र उठाकर यूट्यूब पे नहीं चलाना है। मैंने बोला है मंत्रास का असर रहता है, समटाइम्स डेट्रीमेंटल असर होता है। जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, आप लोग प्लीज, जो स्पेशली मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, आप लोग कोई सर्कस ट्राई नहीं करोगे। प्लस मैं अगर कोई ऑडियो बनाती हूँ, मैं स्पेशल प्रोटेक्शन लेती हूँ हायर बीइंग से, भगवान से, उसके बाद ऑडियो बनाती हूँ। आपको पता है एक एक वर्ड में एनर्जी होती है, तो उसी तरह मंत्रास में कितनी एनर्जी होती है। और जब हम एक एक वर्ड या मंत्रा बोलते हैं, तो ऊपर से एनर्जी आकर हमारे एक एक चक्रा को मॉडिफाई करती है, ठीक है। सो हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं इतनी केयरफुल रहती हूँ। इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि देखो, मैं हमेशा तो आपको नॉलेज नहीं दे सकती, तो बस इतना बोलती हूँ कि आप लोग ट्राई करो जो सोल पीस में ही जो ऑडियोज हैं उसी को यूज करने का। दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी, क्योंकि उसका मैं गारंटी ले सकती हूँ। आप लोग कुछ और ट्राई करोगे, फिर आपका कुछ रिवर्स रिएक्शन होगा, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, ठीक है। प्लस हम लोग क्लियरवाइंटली देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल SSIP, सुपर स्ट्रॉन्ग इन्वोकेशन प्रेयर, ये आपको सबसे पहले सुबह उठ के करना है। क्यों करना है ये? वो इसलिए करना है क्योंकि दिन भर में आप जो भी स्पिरिचुअल, देखिए मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, मैंने, दिस वाज अ सीक्रेट, लेट मी रिवील। कुछ महीने पहले मुझे स्ट्राइक हुआ अचानक से कि हम सब लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, मैं कर्मा जनरेट करवाती हूँ। हमारे जो कोर ग्रुप मेंबर्स हैं, PN मेंबर्स, सपोज उनको जॉब नहीं मिल रही है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या हेल्थ कुछ इम्प्रूव नहीं हो रही, मैं कर्मा जनरेट करवाती हूँ उनका। मेरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं उनका कुछ ही घंटों में कर्मा बना देती हूँ, कि जिससे उनका वो एलिजिबल हो जाए। और इससे बहुत लोगों को जॉब मिल भी गई है ये करवा के, बहुत लोगों के रिलेशनशिप भी ठीक हुए, वॉट एवर इट हैज हेल्प देम। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया है। अब मैंने देखा कि 2-3 सेशंस लग जा रहे थे, यूजुअली एक सेशन में हो जाना चाहिए था, 2-3 सेशन लग जा रहे थे। तब मुझे शक हुआ। जब शक हुआ, फिर मैंने क्लियरवाइंटली देखा कि मैटर क्या है, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। तब मैंने देखा कि कर्मा चोरी होती है, कर्मा के चोर भी होते हैं इनर वर्ल्ड में। हाँ, तो आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि जाप भी करो तो छुपा के करो, क्योंकि चोरी हो जाती है। तो बेसिकली कर्मा की चोरी होती है, ऐसे थीव्स भी होते हैं इनर वर्ल्ड में, तो ट्रेडिंग होती है इस चीज की।
फिर मैं अपने क्लेयरवॉयंट टीम के साथ इसको और जांच पड़ताल किया, तो तब समझ में आया कि हाँ, तो चलिए उतना पावर तो है, जो चोरी किया था वो 90% एक्सट्रैक्ट करके वापस लेकर आ गए। हम लोगों ने किया, लेकिन मुझे दया आई, बाकी लोगों के लिए क्या, उनका क्या होगा फिर। हाँ, तो इसके लिए मैंने एक यूनिवर्सल एक ऑडियो बनाया, दैट इज कॉल्ड एज सुपर स्ट्रॉन्ग इन्वोकेशन प्रेयर, जो सोल पीस के यूट्यूब में है। वो अगर आप बोलते हो तो आप 24 घंटे के लिए आप सेफ हो जाते हो, आपका कर्मा चोरी नहीं होगा। क्योंकि उसमें मैंने, आप लोगों को बिलीव नहीं करोगे, ये है वो 1.5 मिनट का ऑडियो, लेकिन कितने ट्रायल्स के बाद 100% आया वो कि अब एक्यूरेट है। क्योंकि 98 पे रुक जा रहा था, 99 पे रुक जा रहा था। एक एक वर्ड की एनर्जी होती है। मैंने बोला ना, एक एक सेंटेंस को मॉडिफाई किया, तब जाकर फिर 100% वो बनी, कि अब इट इज फुल प्रूफ। आप उसको रीड करने से 99% इफेक्टिव हो रहा था, पर फिर जब जब रीड करने के बाद 99% इफेक्ट हो रहा, पहले मैंने ऑडियो नहीं बनाया था, पहले सिर्फ टेक्स्ट बनाया था। तो फिर जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, इनिशियली इट वाज फाइन, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब देखा बहुत सारे लोग उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो जो इफेक्ट है वो 99% तक आ रहा था, 1% फिर भी गड़बड़ हो रहा था। तो तब मेरे ग्रुप मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने आवाज में बनाइए, अपने उसमें। तो फिर मैंने जब वो बनाया, उसके बाद जाके वो 100% टेक आया। सो दिस इज हाउ, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर सुबह उसको एक बार बोलना है बस, सारा दिन नहीं बोलते रहना है। हाँ, क्योंकि वो मेरा और एंजल्स और हायर बीइंग्स का पैक्ट है, हमारे बीच में एक समझौता है कि जो इसे बोलेगा, हायर बीइंग्स प्रोटेक्शन देंगे 24/7, उनको 24 घंटे का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो सुबह बोल देंगे, उसके बाद आप सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, तो जितना आपने कर्मा बनाया वो आपके पास रहेगा, वो चोरी नहीं होगी। अब इसमें मेरा क्या फायदा है बताइए? मेरा तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं अगर बोल रही हूँ इस चीज को, मतलब डेफिनेटली मैं खुद भी इसको बोलती हूँ, ठीक है चलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है। चलिए मेरे ग्रुप मेंबर्स को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक डिफॉल्ट उसमें डाल दिया है कि मेरे ग्रुप मेंबर्स जो भी करेंगे उनका कर्मा का प्रोटेक्शन मैं करूंगी। लेकिन इतने सारे जो बाकी लोग हैं, जो बेचारे दिन भर किए जा रहे हैं पूजा पाठ, चैंटिंग, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उनको ये SSIP रेकमेंड करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, SSIP सुपर स्ट्रॉन्ग इन्वोकेशन प्रेयर। वो शेयर करिए और बोलिए कि आप ये करो। तो जो लोग वो बोलते हैं, मैं पर्सनली उनको प्रोटेक्ट करती हूँ। इससे आपका कर्मा भी इंटैक्ट रहता है और आपके एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं होते। 1.5 मिनट का ऑडियो है, इट इज डुएबल, आप कर सकते हो। ठीक। हाँ, तो सो बेसिकली वो शुरू करके ही आप बाकी के अपने चैंटिंग वैंटिंग या जो भी कर रहे हो वो प्रैक्टिसेस आपको करना है। सो दिस इज हाउ हम और एफिशिएंटली अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, एफिशिएंटली अपनी जिंदगी को वो कर सकते हैं। तो अभी मुझे ये याद आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग जो फेसबुक में नहीं है ग्रुप में, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो सेशन सुनते हैं, इट्स मच बेटर आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे आपको रेगुलरली आपको नॉलेज मिलता रहेगा और आप सही डायरेक्शन में भी होंगे। और अगर आप न्यू है, आप प्लीज कांटेक्ट करिए हमको, कि मैं आपको एक मेंटर असाइन कर सकूं, कि हमारे ग्रुप मेंबर जो आपका ख्याल रखेंगे, आपके सारे डाउट्स को आंसर करेंगे। मैं पर्सनली मोर देन 500 लोगों को नहीं कर सकती हूँ, मेरी लिमिटेशन समझिए आप लोग। ठीक है, सो आई एम पर्सनली इनवाइटिंग यू ऑल इन दैट फेसबुक ग्रुप। आइए और आप नॉलेज देखिए, नॉलेज शेयर करिए, सीखिए, जितना हो सकता है सीख लीजिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 26। Of all trees I am the holy fig tree, and amongst sages and demigods I am Narad. Of the singers of the god Gandharvas I am Chitrarath, and among perfected beings I am the sage Kapila. The fig tree, that is Ashwatha, is one of the most beautiful and highest trees, and people in India often worship it
as one of the daily morning rituals. तो fig tree जो है उसको हमारे देश में वर्शिप किया जाता है, पूजा की जाती है. तो वो कृष्णा है. Among the demigods they also worship Narad. नारदा भी कृष्णा है, who is considered the greatest devotee in the universe. So नारदा से बड़ा कोई devotee, नारद मुनि से बड़ा कोई devotee नहीं है कृष्णा का, क्योंकि वो हमेशा नारायण नारायण ही मतलब बोलते रहते हैं. Thus, he is the representation of Krishna as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them the best singer is Chitrarath. तो गंधर्वा है जो प्लेनेट में, गंधर्व जो कहते हैं वो अच्छा गाना गाते हैं. तो उनमें से जो सबसे बेस्ट गाना गाने वाला वो चित्ररथ, वो भी कृष्णा है. Among the perpetual living entities, Kapila is considered the incarnation of Krishna. नॉर्मल लोगों में से कपिला जो है उनको भी कृष्णा कहा गया. And his philosophy is mentioned in the Srimad Bhagavatam. Later on, another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. एक दूसरा कपिला भी है, पर वो भगवान मानने वाला इंसान नहीं है, और दोनों में बहुत डिफरेंस है. Text 27. Of horses known to me to be Uchchaishrava, who rose out of the ocean, born of the exhaler of immortality. Of lordly elephants I am Airavat, and among men I am the monarch. The devotee demigods and the demons once took a sea journey. On this journey, nectar and poison were produced, and Lord Shiva drank the poison. From the nectar were produced many entities, of which there was a horse named Uchchaishrava. Another animal produced from the nectar was an animal named Airavat. Because these two animals were produced from nectar, they have special significance and they are the representatives of Krishna. ठीक है, वो जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जहर भी निकला था, हलाहल, और उसमें अमृत भी निकला था. तो अमृत में से ऐसा एक घोड़ा निकला था और हाथी निकले थे, तो वो भी श्रेष्ठ है, वो भी कृष्णा है. और ह्यूमन बीइंग में amongst the human beings the king is the representative of Krishna, क्योंकि एक राजा जो है वही कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है. Krishna is the maintainer of the universe, and the kings who are appointed on account of their godly qualifications are maintainers of their kingdoms. Kings like Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit, and Lord Rama were all highly righteous kings who always thought of the citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered to be the representative of God. In this age, however, with the corruption of the principles of religion, monarchy decayed and is now finally abolished. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. ठीक, तो पहले पहले देखो, जैसे राजा वैसा प्रजा, मतलब एक कंट्री या एक सिटी का जैसे राजा होता था ना, वहां पर उनकी सिचुएशन या कंडीशन भी उस सिटी की या उस कंट्री की राजा पे डिपेंडेंट होती थी. अगर राजा अच्छा नहीं होता था तो वो सिटी या वो कंट्री उतना फ्लरिश नहीं करता था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि राजा काफी धार्मिक हो, कनेक्टेड टू डिविनिटी हो, भक्त हो, तो फिर वो पूरा सिटी का भी काफी मतलब उद्धार होता था. तो जो भी है बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि नॉर्मल लोगों में मैं हूँ राजा, कृष्णा कहते हैं, मतलब ही इज द टॉप. छोटे छोटे टेक्स्ट है इसलिए फटाफट हो जा रहे हैं आज. काश ये चैप्टर खत्म हो जाए, मैं कितने दिनों से चैप्टर 10 पे हूँ. ओके. Of weapons I am the thunderbolt, among cows I am the surabhi, givers of abundant milk. Of procreators I am Kandarapa, the god of love, and of serpents I am Vasuki, the chief. The thunderbolt, indeed a mighty weapon, represents Krishna's power. Thunderbolt मतलब वज्र, वो कृष्णा है. Krishna Loka, in the spiritual sky there are cows which can be milked at any time. जो कृष्णा लोक है उसमें इस तरह के गाय हैं जो बहुत भरपूर दूध देते हैं. हाँ, the Lord keeps many such cows which are called surabhi, उनको सुरभि कहा जाता है. Kandarapa is the sex desire for presenting good sons, therefore Kandarapa is a representative of Krishna. तो जिनकी मनोकामना होती है अच्छे बेटे प्रोड्यूस करने के लिए, वो उनके लिए
कंदरपा होते हैं, जो भी डीटी है, तो वो भी कृष्णा ही है. Sometimes sex is engaged in only for sense gratification. Such sex does not represent Krishna. What is sex? Sex is an act of making love. हाँ, तो जहाँ पे प्रेम नहीं है वो लस्ट है. और एज पर भगवत गीता सेक्स तभी करना चाहिए जब आपको बच्चा प्रोड्यूस करना है, अदरवाइज दैट इज लस्ट. तो जब आपके दिल में आपकी पत्नी के प्रति या आपके हस्बैंड के प्रति या जो भी जिसके भी साथ आप कर रहे हो उसके प्रति प्योर लव है और आप बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हो, देन दैट इज कृष्णा. लेकिन अदरवाइज इट इज लस्ट, इट इज नॉट कृष्णा. But sex for the generation of good children is called Kandarapa and represents Krishna. Text 29. Of the celestial Naga snakes, I am Ananta. Of the aquatic deities, I am Varuna. Of the departed ancestors, I am Aryama. And among the dispenser of law, I am Yama, the lord of death. So among the many celestial Naga serpents, Ananta is the greatest, as is Varuna among them. So सारे जो snakes हैं, मतलब सांप हैं, उसमें से सबसे सुप्रीम कौन है? अनंत. तो वरुण जो है वो सारे एक्वेटिक्स, मतलब जो पानी में रहने वाले क्रिएचर्स में वरुण सबसे बेस्ट है, वो भी कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ ट्रीज प्रिसाइडेड ओवर बाय आर्यमा. एक प्लैनेट ही है पूरा पेड़ पौधों का, तो वो आर्यमा, वो है कृष्णा. There are many living entities who give punishment to the miscreants, and among them Yama is the chief. जो यमराज हैं वो भी कृष्णा है. Yama is situated in the planet near the earthly planet, and after death, those who are very sinful are taken there, and Yama arranges different kinds of punishment for them. ये मैंने आपको पहले ही बोला है, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ न्यू लोगों के लिए. जब किसी की मृत्यु होती है तो एज पर हिज कर्मा या तो उसके रिलेटिव्स लेने आते हैं उसे, या उसको कोई डेमीगॉड लेने आता है. मतलब अगर वो साईं बाबा का बहुत भक्त है, मतलब कोई गुरु या डेमीगॉड लेने आएगा उसको, गणेश जी का भक्त है, बहुत 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 हाई लेवल का भक्त हो तब, या उसको यमराज लेने आते हैं. मतलब अगर वो पापी है तो यमदूत लेने आते हैं. तो हम लोगों ने लास्ट बहुत सारे जो केसेस किए, जैसे कि किसी के मृत्यु होने वाली होती है तो मुझे दिख जाता है उनके पास यमराज या यमदूत खड़े हुए. किस तरह से यमराज दिखते हैं? वो एक मतलब उनके सींग दिखेंगे और वो भैंस पे आते हैं. तो अगर वो दिख गया तो फिर समझ लो कि इसकी मृत्यु अभी पास में ही, तो काफी क्लोज है, जल्दी ही हो सकती है. एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था हमारे ग्रुप में. हमारे एक प्रीवियस ग्रुप मेंबर का ही भाई हॉस्पिटल में एडमिट था. वैसे ऐसी इतनी बुरी हालत नहीं थी उसकी पहले, लेकिन मुझे लग रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग. तो मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा जिंदा. तो उसने मुझे बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर्स ने बोला इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. तो मैंने कहा होगा शायद, वट एवर. फिर सुबह एकदम 6 बजे उसका फोन आया था और उसने कहा कि मेरे भाई की सिचुएशन खराब हो रही है, आप एक बार देख लो कि कुछ हो सकता है क्या. तो जब हमने देखा कि यमराज उसके बेड के पास खड़े हैं. तो मैंने सोचा था मैं शाम को जाऊंगी हॉस्पिटल, मेरा सब काम वाम खत्म करके, ऑफिस का काम और वो सब खत्म करके I'll go, और मैं तब देख लूंगी. लेकिन जब मैंने देखा कि ऑलरेडी यमराज खड़े हैं, तो मैं तुरंत उस समय गई हॉस्पिटल में. मुझे समझ में आ गया कि ये जिंदा नहीं रहेगा. उसके रिलेटिव सब बाहर खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा कि जितने जल्दी हो सके फॉरगिवनेस करो, माफ करो उसे और माफी मांगो. उनको नहीं समझा मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ. मैंने कहा कि ये इंसान जिंदा नहीं बचने वाला. तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा मेरी बात, और मैं भी सच में आइटम हूँ एक नंबर की, बोलने की क्या जरूरत है. लेकिन एज यूजुअल फिर मैं आईसीयू में था वो इंसान, तो मुझे अलाउ किया गया. मैंने बस सर पे उसके हाथ रखा
और एंड दैट पर्सन स्टॉप ब्रीदिंग, बस तब उसने बॉडी छोड़ दिया। तो तब इन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता चला। तो मैंने बोला कि यमराज दिख गए थे, इसलिए मैं इतने स्पीड में ड्राइव करके आई, मुझे पता था अब ये मुश्किल है। तो ये इंसान के लिए यमराज क्यों आए? क्योंकि उस दिन एकादशी थी। तो एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु होती है, इट इज गुड। और फिर यमदूत नहीं आते हैं, यमराज आते हैं। या किसी इंसान ने जो बहुत पापी है, लेकिन उसको अगर हमने हरे कृष्णा चैंटिंग डोनेट किया हो, तो उसके लिए यमराज आते हैं, यमदूत नहीं आते। यमराज कौन है? कृष्णा के ही रिप्रेजेंटेटिव सोच लीजिए आप, काइंड ऑफ कृष्णा ही है, लेकिन कृष्णा नहीं आएंगे। कृष्णा या विष्णु दूत या कृष्णा दूत को आने के लिए आपको मृत्यु के समय पे मुंह से कृष्णा नाम निकालना होगा। या अगर आप सो कॉल्ड गुड सोल है, तो आपके लिए आपके रिलेटिव्स आएंगे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। या आप भक्त है तो आपके लिए आपके वो डेमीगॉड्स आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके लिए विष्णु दूत आए, तो मृत्यु के टाइम पर आपके मुंह से कृष्णा का नाम निकलना चाहिए। तो मैंने ये यमराज, जो यमदूत हैं, यमदूत नॉर्मल नॉर्मल मतलब जो बदमाश होते हैं, मतलब जिन्होंने बहुत पाप किया है, उनके लिए यमदूत आते हैं लेने के लिए उनको। ये अब तक का ऑब्जर्वेशन है, और नॉलेज मुझे मिलेगा तो मैं और बताऊंगी। जैसे जैसे हम केसेस करते हैं और नॉलेज मिलता है, और हमारी आइडियाज क्लियर होते हैं। अब तक का ये ऑब्जर्वेशन है। सो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम पूरी जिंदगी क्या कर रहे हैं। हमें लगता होगा कि हम बहुत अच्छे सोल्स हैं, लेकिन जो हम सारा दिन, सपोज आप सारा दिन नैग कर रहे हो किसी के पीछे, आपको पता नहीं आप किसी के लिए पेन इन द नेक हो, आपके लिए यमदूत आएंगे। बी वेरी केयरफुल। क्योंकि आप किसी को, जो सास अपनी बहुओं को कंटिन्यूसली नैग करते रहते हैं, तुमने ये नहीं, तुम अभी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुमने अभी तक ये खाना ही नहीं बनाया, तुमने वो ही नहीं किया, एंड इन रिटर्न वो बहुएं जो सास को ब्लैक बॉल्स भेजते हैं, अब लोगों के लिए यमदूत आएंगे, एंड इट इज वेरी बैड। तो प्लीज ट्राई करो ये तू मैं अपनी एनर्जी ना वेस्ट करने की। हाँ, ये छोटी छोटी चीजों को अभी रेक्टिफाई कर लो। आप अपने अंदर देखो, अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, मतलब आपके अंदर ग्रज और अनफॉरगिवनेस है। आप शांति से कमरे में बैठ के सबको माफ कर दो, सबको सामने बुलाओ और दिल से माफ कर दो और माफी मांगो। देखोगे आपके छाले फटाफट ठीक हो जाते। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ग्रुप में, और लोगों ने बोला है कि हुआ। जो छाले हफ्तों से ठीक नहीं हो रहे थे मुंह में, मुंह के छाले, सब कुछ ट्राई कर लिया था, वो फॉरगिवनेस से हो जाता है, ग्रज निकालने से हो जाता है। सीधा अपने अंदर से ग्रज को निकालो, मन में बोलो कि रूपाली माँ प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, मैं आ जाऊंगी। बोलो सारा जो ग्रज है निकाल कर बोलो, रूपाली माँ प्लीज हेल्प करो कि हम ये कृष्णा जी को समर्पित कर दे, उनको दे दो, सेक्रीफाइस कर दो, आपके छाले ठीक हो जाएंगे। ये सारा कुछ पॉसिबल है, मतलब हमारा ही कर्मा के वजह से हम ये सब सफर करते हैं। आपको गले में प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है आपको, मैं हूँ आपके सामने जीते जागते इंसान जिसने 15 साल पहले अपना थायराइड ठीक कर लिया था, जस्ट पे हरे कृष्णा चैंटिंग, जस्ट पे हरे कृष्णा चैंटिंग। दिस इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि थ्रोट, थ्रोट का प्रॉब्लम, मतलब मैंने अपने आवाज को डेफिनेटली कुछ गलत चीज में पास्ट लाइफ में यूज किया होगा, मैंने हर्ट किया होगा थ्रू माय वॉइस, थ्रू माय वर्ड्स। तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, मतलब वो अचानक से हुई थी, मैनिफेस्ट होता है ना जब वो कर्मा बनता है। तो फिर मैंने सिर्फ हरे कृष्णा चैंटिंग किया, और उसके बाद से जितने बार भी मैंने टेस्ट करवाया, इट हैज बीन नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। जबकि कहा जाता है थायराइड कभी ठीक नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है, कैंसर भी ठीक होता है। कैंसर को भी ठीक करना है तो मन से ग्रज और अनफॉरगिवनेस निकाल दो। ये सारी चीजें हमारे लिए ही घातक है। इतना भी क्या मोह किसी से कि गुस्सा करके अपना ही बैंड बजाना, इतने इंपॉर्टेंट है वो लोग? इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, हम खुद ही नहीं है इतने इंपॉर्टेंट।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 30। Among the Daityas, I am the devoted Prahlad. Among the subduers, I am Time. Among the beasts, I am the lion. Among the birds, I am Garuda, the feathered carrier of Vishnu. Diti and Aditi are two sisters. The son of Aditi are called Adityas and the son of Diti are called Daityas. All the Adityas are devotees of the Lord and all the Daityas are atheistic. Although Prahlad was born in the family of the Daityas, he was a great devotee from his childhood. Because of this devotional service and godly nature, he is considered to be a representative of Krishna. हमें पता है कि एक ही ऋषि थे, उनकी दो बीवियां थी, दीति और अदिति। वो दीति अदिति दोनों बहनें भी थे। तो अदिति से जो निकले वो है आदित्यास। वो सारे जो हमारे डेमीगॉड्स हैं, इंद्र विंद्र, ये सारे वो आदित्यास हैं। और जो दीति से निकले वो है दैत्यास, वो सारे राक्षस वाले। तो इसलिए वो हमेशा लड़ते रहते हैं। वो दोनों भाई हैं, मतलब देव और दानव दोनों भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, एक ही बाप है उनका। लेकिन उनकी माँ की मेंटालिटी डिफरेंट थी, इसलिए उनको वो गुण मिला है। ठीक है, तो प्रहलाद जो थे वो राक्षस कुल में ही जन्मे थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु के बेटे थे वो। हिरण्यकशिपु राक्षस, लेकिन वो राक्षस होते हुए भी वो भगवान का बहुत ही हाई लेवल डिवोटी थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है राक्षसों में कृष्ण कौन है? प्रहलाद। ठीक, उसके बाद एनिमल्स में लायन है और गरुड़ा जो सबसे स्ट्रॉन्ग बर्ड है, विष्णु जी का वाहन भी है। तो विष्णु कृष्ण गरुड़ा भी है। टेक्स्ट 31। Of purifiers I am the wind, of the wielders of weapon I am Rama, of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges. So of all the aquatics, the shark is one of the biggest and is certainly the most dangerous to man. ये तो हमें पता है। शार्क अगर दिख गया आपको कभी बीच पे तो आपकी क्या हालत होगी, सोच लो। तो शार्क भी कृष्ण ही है। हाँ, अब जो भी है, बीच पर गए हो, आप शार्क दिखे तो हरे कृष्णा बोल के जंप नहीं मारना शार्क की तरफ। ओके, ये बस बताया जा रहा है कि सब में जो भी स्पीशीज है उसमें जो सबसे स्ट्रांग है वो कृष्णा है। शार्क आपको नहीं पहचानेगा कि आप कृष्णा डिवोटी हैं और आपको खा जाएगा। सो ये सारे स्टंट्स आपको नहीं करने हैं, जस्ट बता दे रही हूँ मैं। इन केस पता चला आप गए बीच पे, गोवा घूमने गए और इन केस ऐसे तो कोई आता नहीं है, पर इन केस तभी एक शार्क आया और आपने कहा अरे ये तो कृष्णा है, वाह हरे कृष्णा बोल के मारा एक जंप, शार्क आपको मस्त निगल लेगा। उसके बाद मुझे नहीं पता आप गोलक वृंदावन पहुंचोगे या पाताल पहुंचोगे। हाँ, सो ये सब चांस नहीं लेना है। ओके, रिवर्स में है मदर गैंजेस, गंगा रिवर, और राम जो है रामायण, वो तो पता ही है आपको, माइटियस्ट वॉरियर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, तो वो भी कृष्ण ही है। टेक्स्ट 32। Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle, O Arjuna. Of all the sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. So, among created manifestations, the total material elements are first created by Mahavishnu and are annihilated by Lord Shiva. मतलब महाविष्णु सब क्रिएट करते हैं और सब जो ध्वंस करना होता है शिव जी करते हैं ध्वंस। Brahma is the secondary creator. All these created elements are different incarnations of the material qualities of Supreme Lord. तो ये जो भी बने हैं ये सारे different वही हैं, incarnations ही हैं कृष्ण भगवान के। Therefore, he is the middle, therefore he is the beginning, the middle and the end of all creation. Regarding the spiritual science of the self, there are many literatures such as the four Vedas, the Vedanta Sutras and the Puranas, the Srimad Bhagavatam and the Gita. These are all representatives of Krishna. सारे वेदास का कौन है? कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है। Okay. The presentation of evidence, अच्छा, among logicians there are different stages of argument. The presentation of evidence is called japa. मतलब जब
कोई लोग वो करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो उसमें से जो प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस जब किया, मतलब जब प्रूफ दिया जाता है, तो उसमें इसको कहा जाता है जपा, तो वो भी कृष्णा है। द अटेम्प्ट टू डिफीट वन अनदर इज कॉल्ड वितंडा, and the final conclusion is called vada. The conclusive truth, the end of the reasoning process is krishna. ओके सॉरी, जपा कृष्णा नहीं, एंड है। मतलब अगर डिस्कशन हो रहा है सपोज किसी का, उसमें एंड में जो लास्ट में जो ट्रुथ निकल के आता है, सत्य निकल के आता है, वो है कृष्ण। बाकी के स्टेजेस बीच में बोले गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टेक्स्ट 33। एक मिनट, मैं बस देख लूं कि इस चैप्टर में टोटल कितने टेक्स्ट हैं। ओके 42 है। ट्राई करें आज ये चैप्टर खत्म करने का। चलो कोशिश करते हैं। ही आप आपको सुनना है, मुझे बोलना है। आप तो फिर भी रुक रुक के सुन सकते हो, मेरा सोचो। ओके लेट्स ट्राई। लेकिन अभी बड़े बड़े हो रहे हैं। Of letters, I am the letter A, and among compounds, I am the dual word. I am also inexhaustible time, and of creators, I am Brahma, whose manifold faces turn everywhere. So, Akara, the first letter of Sanskrit alphabet, is the beginning of Vedic literature. So, basically, A है वो कृष्णा। हाँ, in Sanskrit there are many compound words, जैसे कि रामकृष्ण इन्हें कहा जाता है द्वंद्व, तो वो भी कृष्ण ही है। Among all kinds of killers, time is the ultimate because time kills everything. तो समय कौन है? कृष्ण है। Time is the representative of Krishna because in due course of time there will be a great fire and everything will be annihilated. हमें पता है जैसे सृष्टि की रचना होती है वैसे सृष्टि का विध्वंस भी होता है। तो समय सबसे important है। Among creators and living entities, Brahma is the chief. The various Brahmas exhibit 4, 8, 16, etc. heads accordingly, and they are the chief creators in their respective universes. आपको शायद ये मैंने पहले बताया था। अभी वाले ब्रह्मा को आपने अभी वाले ब्रह्मा 3 हेड वाले दिखते हैं, हम जिनको जानते हैं, करेक्ट। लेकिन अलग अलग यूनिवर्स में ब्रह्मा के अलग अलग हेड हैं। मतलब कभी कोई ब्रह्मा दूसरे यूनिवर्स में 8 हेड वाले भी है, 16 वाले भी हैं। वैसे विष्णु जी भी अलग अलग हेड वाले हैं। हाँ, ये आपको शायद नॉलेज पता नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज। अलग अलग यूनिवर्सेस में अमाउंट ऑफ हेड्स डिफरेंट होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी भी वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा ही है। I am all devouring death, and I am the generator of all things yet to be. Among women, I am fame, fortune, speech, memory, intelligence, faithfulness, and patience. As soon as a man is born, he dies at every moment. Thus, death is devouring every living entity at every moment. But the last stroke is called death itself. That death is Krishna. मतलब जो जन्म लेता है वो हर सेकंड वैसे भी मरता है, लेकिन वो जो लास्ट है एकदम सेकंड जिसमें वो कंप्लीटली मर जाता है, उसमें तो फिजिकल बॉडी उसकी मर जाती है, वो डेथ है कृष्णा। All species of life undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, they reproduce, they dwindle, and finally vanish. Of all these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. ठीक है। So, जब एक इंसान जन्म लेता है, मतलब जब वो वूम से कोख से बाहर निकलता है, वो जो जन्म होता है वो कृष्ण है। The first generation is the beginning of all future activities. The 6 opulences listed are considered to be feminine. If a woman possesses all of them, some of them, she becomes glorious. Sanskrit is a perfect language and therefore very glorious. After studying, if one can remember the subject matter, is gifted with good memory or smriti. One does not
One need not read many books on different subject matters. The ability to remember a few and quote them when necessary is also another opulence. तो उसी तरह से संस्कृत भी कृष्णा है, women भी कृष्णा है, सबको मतलब वही बताया जा रहा है. I am among women, I am fame, fortune, speech, memory, intelligence. मतलब ये सारे qualities अगर women में हो तो वो भी कृष्णा है. ओके अभी यहाँ से बड़ा बड़ा स्टार्ट हो जाएगा. सो आई थिंक 50 मिनट्स हो गए हैं ऑलरेडी सेशन का. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 35 इन द नेक्स्ट सेशन. बिकॉज कितने हैं टेक्स्ट हमने अभी देखा, लेकिन फिर वो आपका बाउंसर जाएगा. मैं तो बोल दूंगी 35 से, हाँ तो 35 से 42 तक हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में खत्म करने की. Okay, so from 35 we will continue next time. तो अभी और क्या डिस्कशन हम लोगों को करना है. 10 मिनट है हमारे पास. मैं ट्राई कर रही हूँ सेशन को 1 घंटे के लिए ही रेस्ट्रिक्ट करने की. What else we need to discuss is, हाँ let's talk about a bit about purification. हम लोगों ने लास्ट कुछ दिनों में नोटिस किया है कि जो हायर बीइंग्स होते हैं, अगर प्यूरिफिकेशन वो नहीं देख पा रहे हैं किसी भी इंसान में, वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं. और ये प्यूरिफिकेशन बहुत टाइप का है. तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारा कहाँ पे आके हमारी ग्रोथ अटक रही है. तो चलिए थोड़ा सा आत्मा मंथन करते हैं हम लोग. रिलैक्स होके बैठ जाइए. इनहेल डीपली, होल्ड, एक्सहेल डीपली, होल्ड. हे राधे कृष्णा, प्लीज हमें बताइए कि हमारा क्या ऑब्स्टेकल है स्पिरिचुअल ग्रोथ में. ऐसा कौन सा अवगुण है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे. आज आपकी शरण में आकर आपको ही रिक्वेस्ट करके हम उस अवगुण का नाश करेंगे. प्रभु दिल से राधा कृष्ण को बुलाओ और बोलो, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव लोअर इमोशंस हैं, प्रभु आज वो आप रूट से, सीड से डिसइंटीग्रेट कर दीजिए. राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण. देखो अभी आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा. आपके दिमाग में वो वर्ड आएगा. अगर वो ईगो है, या वो एंगर है, या वो लस्ट है, या वो ग्रीड है, या वो रिवेंज है, व्हाटएवर, जो भी नेगेटिव लोअर इमोशन आपको हर्डल, आपके लाइफ में हर्डल बना रहा है, मतलब आपका ग्रोथ नहीं होने दे रहा, वो वर्ड आपके सामने आ जाएगा. जरा थोड़ा एकदम शांत दिमाग से बैठिए. हाँ, और जस्ट सुनिए, मैं बस चैंट कर रही हूँ, आपके सामने वो वर्ड आ जाएगा. जैसे ही वो वर्ड आपके सामने आ जाता है, आप राधा कृष्णा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वाला अवगुण आपके अंदर से पूरा नाश कर दे. ये आप 2-3 बार करो, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दो. आप YouTube में लिखो या Facebook में लिखो, जहाँ दोनों जगह पे लिख सको तो बेस्ट. आप मुझे बताओ कि आपने चेंज नोटिस किया क्या अपने अंदर. लेकिन 2-3 बार करना पड़ेगा आपको. एक बार में डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर भी जितना होगा होगा. आप देखोगे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इससे फास्ट हो जाएगी. ओके, विल स्टार्ट. राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण. दिख गया होगा आपको. नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है. आप बस रिक्वेस्ट करिए कि प्रभु मेरा वो नाश कर दीजिए. हे राधा कृष्णा, आपकी एनर्जी से और आपके चरणों में पड़कर नतमस्तक होकर हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर
जो भी अवगुण है जिसके वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हो पा रहा, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रहा, हमने जो स्टोरी लिखी है हमारे इस इनकारनेशन का, वो स्टोरी फुलफिल नहीं हो पा रही है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उसको कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर दीजिए, रूट लेवल से डिसइंटीग्रेट करिए, सीड लेवल से डिसइंटीग्रेट करिए। सुपर क्लेंजिंग साधना से ऑलरेडी ये होता है, लेकिन ये सेशन जब होता है ना, सेशन में ज्यादा एनर्जी होती है। तो सुपर क्लेंजिंग साधना अगर आप रोज करो, इट इज वेरी गुड। मैंने सुना है आप लोगों को नींद आती है, खड़े खड़े करो, गिरना नहीं है, खड़े खड़े करोगे तो, लेकिन एक्सरसाइज करके करो, मे बी दैट इज बेटर, लेकिन करो जरूर, जैसे भी हो गिरते पड़ते करो जरूर। सुपर क्लेंजिंग साधना बहुत हेल्प करती है। आपको बुखार आया है, आप लेटे लेटे सुपर क्लेंजिंग साधना करो, आपका बुखार चला जाएगा। आप ट्राई तो करके देखो, मैं वही बोलती हूँ जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। आपको परेशान होना नहीं है किसी चीज से, कोरोना वायरस ये वो किसी से आप परेशान मत होइए। अगर अगर हम एंटाइटल्ड हैं हमें होना, तो हमें होगा ही, और होना भी चाहिए अगर हम एंटाइटल्ड हैं। लेकिन अगर हम एंटाइटल्ड नहीं है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि कोई इंसान को कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, आप उसे सुपर क्लेंजिंग साधना भेजिए, बोलिए वो चला के रखे, उससे उसको बहुत हेल्प मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके अंदर का कचरा खत्म हो जाएगा सुपर क्लेंजिंग साधना से। जैसे अंदर का कचरा खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे थॉट्स के वजह से ही हम सफर करते हैं, थॉट्स की वजह से हमारे अंदर डिजीजेस पैदा होते हैं। तो जैसे ही वो थॉट साफ होने लगे, अब देखोगे आपके हेल्थ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। तो कोई भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, आप उनको सुपर क्लेंजिंग साधना का ऑडियो भेज सकते हैं। वो बोलेंगे कि लंबा है, तो बोले कोई बात नहीं, सिर्फ लेटे लेटे ही सुनो, बस सुनो इसको, एंड यू विल सी द डिफरेंस। और अगर उनको मिलता है डिफरेंस, पता चलता है, आप उनको फेसबुक ग्रुप में ऐड करिए और यूट्यूब पे बोलिए सब्सक्राइब करने को, जैसे कि वो और ऑडियो सुनते रह सके। दिस इज अ सर्विस विच यू विल बी डूइंग। अगर आपको ये सारे भगवत गीता सेशंस, बाकी ऑडियो सुनकर अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, एज अ मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड आप ये दूसरे लोगों को भेजिए और फीडबैक दीजिए। फीडबैक देने से क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, बाकी लोगों को भी मिलेगा। आप ही लोगों की तरह मैं भी एक इंसान हूँ जिसके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जिसके सिर्फ 2 हाथ 2 पैर हैं, जिसका फुल टाइम जॉब है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर के। लेकिन जहाँ पे सारे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कुछ अगर पॉजिटिव ऑडियो बनाकर, थोड़ा सा नॉलेज देकर किसी की जिंदगी में थोड़ा अगर बेटरमेंट ला सकती हूँ तो क्यों ना लाऊं। लेकिन ये सब में मुझे आप सबका हेल्प भी चाहिए, दैट इज थ्रू फीडबैक्स, बाय शेयरिंग, बाय एडिंग मोर पीपल टू द ग्रुप। आप अपना गुड कर्मा बना रहे हो, इससे आपको ग्रुप से और हेल्प मिलेगी। वरना एक पॉइंट के बाद ग्रुप से हेल्प मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि ग्रुप के प्रति आप कोई कर्मा नहीं करते हो। आप घर बैठे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, वो ग्रुप के प्रति कर्मा नहीं है। अगर आपको इस ग्रुप से कुछ हेल्प मिल रहा है, तो ग्रुप के प्रति कर्मा है कि ग्रुप को प्रमोट करो। आप और लोगों को बोलो, ऐड कराओ, सब्सक्राइब कराओ, हाँ, कमेंट्स लिखवाओ। सो देन आपका कर्मा बनता है कि आप हमेशा इस ग्रुप से आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो आई होप कि कृष्ण भगवान ने आपको हेल्प किया होगा अभी, आपका वो नेगेटिव लोअर इमोशन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। और शांत रहिए, किसी पे गुस्सा मत करिए। गुस्सा करना मतलब अपने बॉडी में पॉइजन प्रोड्यूस करना। ये सारा बहुत बार रिपीटेड बोला है मैंने, इसलिए मैं दोबारा रिपीटेड नहीं बोलूंगी। और इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करेंगे। तो हम लोग थैंक यू प्रेयर बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हायर बींग्स, सारे डेमी गॉड्स, सारे हेल्पर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रोटेक्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने ग्रुप में स्टार्ट किया है, दैट इज कर्मा डोनेशन टू मदर अर्थ।
इट इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। सो आप अपने हिसाब से ट्राई करोगे नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बोला मेरा पैक्ट है, समझौता है हायर बीइंग्स के साथ, जिसमें मैं ये सब कर सकती हूँ। तो आप लोग उसको हमारा स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए जो फेसबुक ग्रुप पे है, और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि घर बैठे बैठे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड कर्मा जनरेट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीक से ये शुरू किया और लास्ट वीक में हम लोगों ने क्लियरवाइंटली देखा कि अर्थ की पॉजिटिविटी को हमने 0.23% तक टुवर्ड्स पॉजिटिव शिफ्ट कर पाए हैं हम। आपको नहीं विश्वास करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फेरी टेल समझ सकते हो। हम हमारे ग्रुप के क्लियरवेंसी पे भरोसा करते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना आपका पैसा खर्च हो रहा है और ना ही आपका कोई इसमें नुकसान नहीं हो सकता है तो बस फायदा हो सकता है। तो बाय डूइंग दोस प्रैक्टिसेस जो मैंने रिकमेंड किया है एज कंपलसरी, वो करके आप सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस डोनेशन। आपके मेंटर्स से बात करिए, जिन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया उनसे बात करिए, और इसके लिए ऑडियो भी ऑलरेडी है ग्रुप में, तो डेफिनेटली इसका लाभ उठाइए। आई वुड रिकमेंड दिस। इससे घर बैठे आप बहुत अच्छे से गुड कर्मा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। राधा कृष्णा की कृपा हम सब पे बनी रहे। थैंक यू। राधे कृष्णा। बाय बाय।